हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सत श्री अकाल बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ। Switched off my phone. So in last lecture we started with the errors, the chapter with the errors of measurement. So we can see the slides. Yes, this was the outlining slide. So इस slide ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। The first thing was significant figures, second thing was rounding of a number, ठीक है। सो significant figures ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, that is ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਜਿਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ, देयर वर 6 रूल्स, ठीक है। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਸੀਗਾ ਰੂਲ ਉਹ 5ਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਨਐਵਰ ਯੂ ਸੀ ਅਟੈਂਡ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ then please ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਨੀਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਨੰਬਰ ਅਪ ਟੂ second decimal place or third decimal place and it is given in the 5th place, 6th place, ठीक है। so ਉਹਨੂੰ how to round off that number। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਨੰਬਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਆਈਦਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਦੈਟ ਕੈਨ ਰਿਮੇਨ ਦੈਟ ਨੰਬਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 4 ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 8 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੂਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਅਗਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 0 ਆ, ਅਗਰ ਆਹ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਆ ਤਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਓਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 3.77 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5 ਹਟਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਸੀਮਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਟ ਏ ਗਲਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ 3 ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ 4 ਆਇਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪ ਟੂ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3.8 ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਵਰ 2 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 and 8,
ठीक है। इन दिस नंबर वी हैव 0.125। सो बाय द रूल जो डेसिमल तो पिछला 0 आ, अगर नंबर आह 1 तो घट है ना, सो इनू आप छड्ड सकते हैं। तो वी हैव ओनली 3 डिजिट्स, दैट इज़ 1 to 5, 1 2 and 5। दीज 3 डिजिट्स आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आप इस नंबर नू रख लिया है ना, तो ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मैं तुहानूं की क्या स्मॉलेस्ट रखना है जो रिजल्ट आऊ। हुण इहनूं जो मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने तो बाद अगर आह वाली वैल्यू आ गई जिद्दां, सो वी रिटेन दी वैल्यू अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो असीं इहनूं 0.475 नहीं लिखांगे, वी विल राइट इट बाय राउंडिंग ऑफ दिस नंबर। असीं आह नंबर चक दांगे इत्थों, इस नंबर नूं इत्थों प्लक आउट कर देना। सो वट विल बी देयर, अपने कोल रह की जाऊगा 0.47, सॉरी 7, दिस इज ऑड नंबर है ना, गलती करके ना मैं। सो बाय कन्वेंशन जे आप 5 हटाना है तो इतने ऑड नंबर है, दैन वट विल बी राइटिंग की आऊगा 0.48, वो आ रहा आंसर लिखा, ठीक है। सो ये आप हले तक किया सीगा। जिहड़ा नैक्सट आप स्टार्ट करना सी, नैक्सट सीगा अपने कोल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ए फिजिक्स, एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ साइंस, any kind of science, ठीक है, whether that is chemistry, whether that is physics और even biology भी कह लो, तुसी biology भी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी, जिन्नियां भी अपने कोल फील्ड्स जिहड़ियां साइंस दे विच हैगियां, अगर किते एक्सपैरीमेंट हो रहा है जिन्हां च असी एक्सपैरीमेंटली ऑब्जर्वेशनस लेने हैं ਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ऑब्जरवेशनस भी लेने हैं, जिवें तारिਆਂ ਦੀਆਂ ऑब्जरवेशनस भी लेने हैं एस्ट्रोफिजिक्स दे विच, ठीक है। जिद्दां जियो के केस दे विच जियोलॉजी कह लो या जियोग्राफी कह लो, मोर ओवर जे आप अंदर जाना हो तो जियो फिजिक्स भी होंदी है। वैसे जियोलॉजी इज़ ए वास्ट फील्ड, जियो फिजिक्स उहदा पार्ट आ, जियो कैमिस्ट्री होंदी है, हर तरह की साइंस जदों जिन्हां च ऑब्जरवेशन लेने, अर्थक्वेक आउंदे आ, गैसेस रिलीज़ होंदियां, सो हर तरह की जिन्ने भी अपने कोल एक्सपैरीमेंटल ऑब्जरवेशन जिहदे विच आपां लेने आ, उत्थे आह वाला पार्ट तुहाडा बहुत प्ले करदा, दैट इज़ एरर्स इन मेजरमेंट। That is why I told you in last lecture that errors ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ फाइंड आउट करनियां ਜਾਂ errors ਨੂੰ कंबाइन करना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ठीक है। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ जिन्ने भी आप फील्ड काम करते हैं, जिथे भी पैरामीटराइजेशन होंगी है किसी भी चीज़ की, एरर्स आर इनवॉल्व। बाहर कैनेडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ठीक है, उत्ते अजकल बड़ा एक फील्ड चलिया हुआ है डाटा साइंसिस का, है ना। सो की करते हैं उहदे विच जिवें साइंसिस के बैकग्राउंड के बच्चे ही होंगे सारे। सो वो जाके की है उन्होंने डाटा साइंस के उन्होंने डाटा चकना, कोई डाटे की सिग्निफिकेंस देखनी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस तो बाद उन्होंने एरर कट के सो फिट लाउणियां ने, डेविएशनस कड्डनियां है ना, सारा कुछ। सो अगे आउणगियां अपने कोल टर्म्स कुछ इदां दियां, उन्हां नाल एनालिसिस करके उन्होंने रिजल्ट देने ते कमाई जांदे। फ्रीलांसिंग करते हैं बच्चे इत्थे इंडिया च, पंजाब च, ईवन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, साउथ दे विच तो बहुत ज़्यादा तो अपनी एज के बच्चे जिहड़े ओह घरे बैठे इदां दियां इन्हां चीज़ां नूं, इन्हां टूल्स नूं यूज़ करके, है ना, वो अर्निंग भी कर रहे हैं। सो आप हले उस चीज़ के हले जाना नहीं, क्योंकि तुसी हले छोटे हो, हले तुहाडा सीखण दा टाइम है। सीखते सीखते 2 साल तक भी तुसी इस गल दे हो जाओगे, जो तुसी कॉलेज ज्वाइन कर लिया उस वेले तुसी उन्हां चीज़ां च पंगे लैण दा तुहानूं टाइम भी होगा, ठीक है। सो नाउ फोकस इन दिस। सो उधर नूं नहीं जाना, हले आपां एरर्स ते रहना, ठीक है। मैं तुहानूं सिर्फ इन्ना दस्सिया कि एरर्स किद्दां इंपॉर्टेंट होंदियां आ, ठीक है। सो पता ही है ना एरर्स ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ खैर खास करके ਹੁੰਦਾ ही है, क्योंकि एक चीज़ होंदी है भी ईवन मैं भी सीखता रहा मम्मी के नाल ना चीज़ां। आप घरे जो दाल सब्जी बनानी है, लूण घट पै गया, लूण ज़्यादा पै गया, उहदे विच भी एक एरर होंदी है ना, इन्ने च 1 चमचा पैना, उहदे च इन्ना किन्ना माप तोल कीता हुंदा। सो उहदे च भी कुछ तरह दी एरर्स होंदियां। तुसी मैनू दस्सिओ, हाँ ये मज़ेदार पार्ट बनूगा अगर आपां जदों एरर्स दियां टाइप कर लिया ना, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर्स, तो आपां ये देखांगे कि किन्ना क रिलेट करदा अपनी डेली लाइफ दे नाल चीज़ां। ते वो मैं नहीं, वो तुसी मैनू देख के दसोगे सर हाँ ये वाली एरर जिहड़ी है इदां दे काम दे विच भी हुंदी है, ते उत्थे आपां इस एरर नूं ये एरर कह सकदे हां, ठीक है। मम्मी जिहड़े अपने उन्हां नूं नहीं ये गल कहणी मम्मी आह वाली एरर कीती, मैं आह वाली कीती, तुसी आह कीती, ना ना, ठीक है। वो फिर फन हो जाता घरे। चलो हसना खेडना चाहिए। आप स्टार्ट करिए, ठीक है। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, देखो बेटा सीधी जी गल है, ज़्यादा डिटेल च नहीं गल करनी, कन्फ्यूजन गल नहीं करनी, सीधी सीधी।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਐ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੋਡ ਲਾਉਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਕੇਲ, we use an instrument which is actually known as ਕਿ standard ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਬਈ ਇੰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 1 ਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ 99 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, 99.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 101 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ 102 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ 102 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰॉ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਐਰਰ। ਸਿੰਪਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਐਰਰ। ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ and the measured value of a quantity is called error of measurement. True value ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਰਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਰਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਕੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਈ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਕੇਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਫੜਨ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਪੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਐਰਰਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਐਰਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦ ਮੇਜਰਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਰਰ ਆਫ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਰਰ ਆਫ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਰਰਸ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ 4-5 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ, ਸੈਕੰਡ ਆਰ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ, ਥਰਡ ਆਰ ਗ੍ਰॉस ਐਰਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਅੱਖਰ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਸਿਸਟਮ ਐਟਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਰਰਸ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਰਰ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਊ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ ਆਰ these errors which occur according to some definite pattern, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਰਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੇਜਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਮੇਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਮੇਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਰਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ, ਵੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ,
ठीक है। फिर भी जे तुहानूं कोई पुछ लवे इंटरव्यू च पुछ ले तुसीं इदां देना दीज आर दी एरर्स विच अकर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट पैटर्न, ठीक है, एंड इन आई वन डायरैक्शन आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नैगेटिव, किसी भी पासे हो सकती है, पॉजिटिव वाले पासे या नैगेटिव वाले पासे, ਵਧਾਉਣ वाले पासे भी हो सकती है, घटाउण वाले पासे भी हो सकती है। सो these errors affect the result in same way, ठीक है। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪੈਟਰਨ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਜ਼ ਫॉर these ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਗਰਡ ਆਊਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਝੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਰਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिदा मैं कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा सी न्यूक्लीयर का, सो मैं की किया, मैं एक रेडियो एक्टिव सोर्स लाया तो डिटेक्टर तो मैं लगा दिता है ना। जो मेजरमेंट करन लगे तो हुण मेरी जोमैट्री च एक टारगेट आउंदा सी, एक फिल्टर आउंदा सी, तुसीं ऐ कह लो फिल्टर ना उहदियां सारियां रेडिएशनस जिहड़ियां आ ओह अबजॉर्ब कर लैंदा सी। करनियां तो चाहिए सी बट मेरे केस च की हो रहा सी, फिल्टर तो बाद भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पै रहा सी, रेडिएशन घटनी चाहिए सी ना फिल्टर ला के, जो आप विचाले कोई बैरीयर रख दिए आ मेरे को सोर्स पिया आ मेरे को डिटेक्टर पिया रेडिएशन का, बिच मैं फिल्टर लाता वो हो गया सी फिल्टर च मोहरी सी बहुत ही बरीक पाइन होल पिन जी होंगी है अपनी पग वाली पिन होंगी है ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਉਣ वाली सूई होंगी है ਉਹਦੀ टिप जिन्नी एक होल सी वो होल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ रेडिएशन निकल गई तो वो डिटेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਵੱਜੀ। की हो गया रेडिएशन लीकेज होगी। सो वो सिस्टमैटिक एरर सी, ठीक है। हर बार वो आ रहा सी तो मैंने पता लग गया यार इस तो शेक है, मैं ऐ करके देखिया, ठीक है, लाइट वाल नूं तो पता लग गया। सो समझ आ गई ना, दिस वाज एन एग्जाम्पल, एग्जैक्टली दिस वाज एन एग्जाम्पल, ये मेरे नाल होई सी, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट नॉट एन एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस सीगा। चलो आ जाओ आप गल करिए। सो आपां जे पता लग जे तो मैं की करूँगा, मैं टारगेट दोबारा बना लूँ, फिल्टर दोबारा बना लूँ, मैं फिगर आउट कर लिया, मैं मिनीमाइज भी कर लिया एरर, अगली बार फिल्टर सही तरह बना के लाया दोबारा, ठीक है। पहला भी सही बनाया सी आप चलो, जो दोबारा लाया तो रेडिएशन जी लीक नहीं हुई। सो मैं की किया, मैं अपनी सिस्टमैटिक एरर नूं रिमूव करता, आई रिमूवड दैट, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 टाइप्स ने, वो मैं इत्थे एक्सप्लेन नहीं कीतियां, जस्ट मैं तुहानूं उदां ही दस देना। इंस्ट्रूमेंटल एरर जिहड़ी हुंदी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ डिज़ाइन ਕੀਤਾ है ਆਪਾਂ इंस्ट्रूमेंट है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ डिफेक्ट होवे, मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, जिद्दां मैं हुण मेरा डिटेक्टर आ तो जिद्दां तुसीं ऐ कह लो भी जो मैं रेडिएशन पा रहा, अगर मेरा कॉलीमीटर ही टेढ़ा है तो टेढ़ी ही जाऊगी रेडिएशन, सीधी थोड़ी जाऊगी। कॉलीमीटर हुंदा भी कोई पाइप है, पानी की पाइप ला लो, जे पानी की पाइप मैं सीधी रखी हुई है, ठीक है, लोहे की पाइप आओ वो सीधी दऊगी, जे मैं उत्थे रबड़ की पाइप रखती उस तो वल भी बहणगे, फ्लो की गड़बड़ होगी ना। सो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। वो डिज़ाइन ते एररनैस जी मैन्युफैक्चर ते ही डिपेंड करती है अपने को, तो इन्हां दे विच आपां इंस्ट्रूमेंट नूं देख के ही कर लैंदे आ। फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा आपां लैब दे विच एक्सपैरीमेंट करते हुंदे आ, लैब च तुहाडा पहला एक्सपैरीमेंट आ कि वर्नियर कैलीपर्स है, स्क्रू गेजिज है, उन्हां दे नाल कुछ मेजरमेंट्स ने। सो जो अपने वर्नियर कैलीपर करते हैं ना, तो वर्नियर कैलीपर दे विच जिहड़ा वर्नियर स्केल हुंदा, समटाइम्स की हुंदा है तुहाडे कोल ना स्केल असीं 0 तो स्टार्ट करना हुंदा, वो जिहड़ा ते उहदी वैल्यू अगे पिछे हुंदी है, डिवीजन जिहड़ी है जोमैट्री च अगे पिछे आई हुई है। सो उहनूं असीं 0 एरर करके रिमूव कर लईदा, वो लैब दे विच तुहानूं समझाऊंगा। मीनस इंस्ट्रूमेंट्स दीआं एरर्स नूं असीं इंस्ट्रूमेंट्स ते रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, उन्हां नाल डील करके चंगी तरह। सैकेंड इज़ दी पर्सनल एरर, ये वो एरर है जिहड़ी मैं कह रहा, पहलां आपां गल करदे पए सी सिस्टमैटिक एरर च भी जिहड़ी सिस्टम दे करके एरर है। दूजी ये है भी मैं लेंथ मेजर कर रहा, मेरे तो कपड़ा तो नहीं खिंचा गया, वो पर्सनल टाइप की एरर है, ठीक है। मैं जो रीडिंग देख रहा हाँ तो मेरे को जी डिवीजन है, मैं उन्होंने बिल्कुल आई टू आई 90 डिग्री ते देख रहा कि मैं साइड तो देख रहा, जे मैं साइड तो देखूँगा डिवीजन जी इधरली डिवीजन है वो मेरी अख के मोहरे आ जाऊगी, जी सीधी पई आउण दी बजाय। सो इदां दीआं पर्सनल एरर्स होंदियां आ, ठीक है। दीज मे बी ड्यू टू दी इनएक्सपीरियंस ऑफ दी ऑबजर्वर। ये उदों हुंदा है जदों आपां नवीं चीज़ किसी चीज़ नूं हत्थ लाइए, ठीक है, जो नवीं चीज़ नूं हत्थ लाइए, जदों फिल्टर दे विच सुराख सीगा है ना, होल सीगा, ऐ कह लो भी मैं नवां सी, उस तो बाद मैं बहुत सीरीयसनैस दे नाल दोबारा फिल्टर बनाया। सो वो जिहड़ा फिल्टर सीगा दैट वाज परफेक्ट, ठीक है। सो वो पर्सनल एरर गिनी जा सकती है जी फिल्टर वाली एरर सी। पाइप वाली एरर आप सिस्टमैटिक कह दी, स्केल वाली एरर भी सिस्टमैटिक कह दी, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਐਰਰ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਰਰ ਇਨ ਵੇਇੰਗ ਅਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਇਓਨਸ is usually ignored. Radiation error in experiments on heat is ignored. Proper correction can be applied for such errors. ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਥਰਡ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਰਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੀਦਾ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀਲਾ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ 2000 ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਰਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਰਰਸ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਰਰ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਜ਼ਸ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਰਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AC ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਸੀ। ਸੋ AC ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 16 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 23 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ AC ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ AC ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਬਮੇਟ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, AC ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਰਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਰਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਜ਼ਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ BSc 'ਚ ਜਾਂ BTech 'ਚ ਜਾਂ MBBS ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਈਵਨ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, STP ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਰਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰਸ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਲਿਓ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖੋ ਹੁਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ, ਬਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ,
रैंडम मतलब कुछ भी इदां ही हुंदा ना। सो रैंडम एरर्स दे विच देखी की है, दीज एरर अराइज दिस एरर अराइजेज आऊगा, जां दीज एरर्स अराइज, ग्रामर अपनी सही रखिया करो, ठीक है। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, कुछ भी हो सकता, कुछ भी फैक्टर हो सकता। बिकॉज ऑफ सच एरर्स, अच्छा इदां दी एरर्स जो वापरदियां ने, जां तुसीं ऐ कह लो वो वालियां एरर्स जिन्हां दे रीजन ना पता लगन, उन्हां नूं असीं चुप करके कह दिंदे यार ये तो कोई रैंडम एरर है, ठीक है। एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं, रिजल्ट कोई एरर्स आ रही हैं, मैनू नहीं पता लग रहा कित्थों आ रही है। आप सारे पासे देख लिया, पूरा ध्यान ला के पूरा कंसनट्रेट करके चैक कर लिया, आपां नूं नहीं लभियां, इट मीनस कि कोई रैंडम ही है, पता ही नहीं लग रहा कित्थों आ रही है। विद द टाइम कई बार ये रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसीबल टू एलिमिनेट दीज एरर। आप इन्हां नूं घटा सकते हुन्ने आ अपनी परफेक्शन वधा के, बस इन्ना की कर सकते हुन्ने, जिन्ना ज़्यादा आपां ध्यान नाल कर लांगे, अदरवाइज एरर्स जिहड़ियां रिमूव नहीं होंदियां। दीज आर समटाइम्स टर्म्ड एज चांस एरर्स। भी तुहाडी क्लास ही ला लो है ना, मैं एक्सपैरीमेंट की कर रहा हाँ, मैं कोई मेजरमेंट की इन्नी आ गई, सिमरन ने की इन्नी आ गई, सुमीत ने की इन्नी आ गई है ना, अजीज ने की इन्नी आ गई, सारे तुसीं वक्रे वक्रे। हुण जदों एक रिजल्ट आपां लैने आ वो वक्री वक्री आ रही है, हुण इहदे विच सारे आपदे वल्लों बिल्कुल सही कर रहे हैं एक्सपैरीमेंट, ठीक है, बट वैल्यू का फर्क आ रहा है। इट मे बी कि कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर रही होवे जां कोई हैंडलिंग एरर रही होवे, ये भी हो सकता भी हैंडलिंग दे इंस्ट्रूमेंटेशन तुसीं इकट्ठे कर रहे हो, दो दो तीन तीन दे आपां ग्रुप बनाते हैं ना, बट समझ नहीं आ रहा भी रिजल्ट वखरा वखरा क्यों दिख रहा। इट मीनस कि देयर इज सम रैंडम फैक्टर जिहड़ा आपां नूं पता नहीं लग रहा। सो आपां नूं एक्सपीरियंस दे नाल पता लगदा हुंदा, एक्सपीरियंस दे नाल कढना पैंदा। फॉर एग्जाम्पल वैन सम सेम परसन रिपीट, कई बार इदां भी हो जाता, सेम परसन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स, ठीक है। जिस सिमरन एक्सपैरीमेंट कर रही है, इट मीनस कि दुबारा करदे सिमरन ने जिहड़ी वैल्यू लई सी, दूजी बार सिमरन कोल वैल्यू होर आ गई। सो कोई रैंडम फैक्टर हो गया क्योंकि सिमरन ने पहला वांगू ही रीडिंग लई, ठीक है, तो इदां ही होगा। हाउएवर दीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग दी ऑब्जर्वेशन ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम। असीं इदां करदे हैं, स्टैट कंसीडर कर लैंदे हैं। स्टैट लफ्ज़ पता नहीं तुहानूं पता होगा कि नहीं, ठीक है, इट मे बी कि पता ही होवे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਹ ਵਾਰ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਲੂਡੋ ਦੀ ਗੀਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਲੂਡੋ ਆ, ਲੂਡੋ ਦਾ ਡਾਈਸ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। अरिथमैटिक मीन ले लिया, मीन लैके आप कहने नहीं यार भी आह एक मोस्ट प्रोबेबल जी वैल्यू आ, बस आप इनू एब्सोल्यूट मान लें। तो जे कोई एरर आऊगी, ठीक है, तो आप इस एब्सोल्यूट जी मीन वैल्यू कड्ढी होगी, आप तो देख लें भी इधरले पासे कितनी डेविएशन है, इधरले पासे कितनी डेविएशन है। सो आप एरर रिमूव कर लें इदा करके। सो वी हैव द टूल्स, ठीक है। सो डेफिनेशन चाह दो तीन चीज़ा या दो तीन पॉइंट लिख लियो, उस तो बाद कितना रिमूव करते हैं उन्होंने आ लिख लियो। हाँ ये वधिया गल है भी जो कोई पूछ ले भी वट इज़ रैंडम एरर, वट इज़ चांस एरर, ठीक है, कुछ भी। सो इन्होंने दोनों सेम चीज़ है। थर्ड है अपने को ग्रॉस एरर्स। बाई ग्रॉस एरर्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ सिर्फ ਇਹ ਹੈ भी जे ਤੁਹਾਡਾ मूड नहीं हैगा एक्सपैरीमेंट ਕਰਨ ਦਾ ਬਈ ना करो, ठीक है। जे मूड नहीं हैगा ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਜਾ ना करो। रीडिंग लैनी है तो चज नाल लैनी है, नहीं तो नहीं लैनी। इफ यू हैव टू डू वर्क दैन यू हैव टू डू इट विथ फुल कंसनट्रेशन, ठीक है। फिजिक्स च हले चल जाता है जो आप मेजरमेंटा करनिया, हुण जो कैमिस्ट्री के एक्सपैरीमेंट करते हैं माड़ी मोटी ड्रॉप के नाल कुछ भी हुंदा, ठीक है। अपने को एक ड्रॉप के नाल ही टाइट्रेशन दे विच कलर चेंज हो जाता। सो उत्थे जो टाइट्रेशन करते हैं लिक्विड डिग रहा है एब्जोल्यूट दे विचों, सेम मेरे को 4 इधर पिंक हो कलर स्टार्ट हो गया, सैचुरेशन आ गई, पिंक कलर आ गया, कलर चेंज हो गया सोल्यूशन का, बट मेरे तो 4 ड्रॉप्स होर डुल गई। हुण कादी एरर है, कादे करके? दैट इज़ ओनली ड्यू टू केयरलैसनैस। सो इदां दियां जिहड़ियां एरर्स हुंदियां ने उन्हां नूं आपां ग्रॉस एरर्स कहने हैं, ठीक है। दीज एरर्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलैसनैस ऑफ द ऑब्जर्वर। बस आपां केयरलैसनैस नहीं दिखानी, सीरीयसली काम करना हुंदा। सो फॉर एग्जाम्पल these error arise on account of चल रहे हैं ना account of sheer carelessness of observer। एग्जाम्पल की गल कर रहे सी, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली।
मान लो भी स्केल रखिया आ, ठीक है, कपड़े ते रखिया आ जां कोई लाइन है, स्केल नूं असीं टेढ़ा रखी बैठे हैं तो मेजर करन लगे हुए हैं बई, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जूगी। सो इंस्ट्रूमेंट नूं सही रखोगे, स्केल नूं सही रखोगे, हो जाओ। एग्जाम्पल्स ही ने बस इहदे विच, टाइप ए अपने आप जी है, ठीक है। टेकिंग द ऑब्जरवेशन रॉन्गली विदाउट केयरिंग फॉर द सोर्स ऑफ एरर, आपां सोर्स ऑफ एरर आपां नूं पता नहीं, प्रिकॉशनस असीं लै नहीं रहे, टैंपरेचर दा हिसाब असीं टैंपरेचर प्रेशर दा कुछ भी नहीं कर रहे, दैन की है रिजल्ट च गड़बड़ आ जूगी, उन्होंने भी असीं ग्रॉस एरर बोल देंगे। सो रिकॉर्डिंग द ऑब्जरवेशनस रॉन्गली, जे आप गलत तरीके नाल ऑब्जरवेशन लै रहे हैं वो अपने ते डिपेंड करता भी किदां दी एरर है ना। यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जरवेशनस इन कैलकुलेशनस दे विच असीं जदों गलत वैल्यू यूज़ कर देंगे वो भी अपनी केयरलैसनैस है, ठीक है। पाई दी वैल्यू मेरे को 3.14 भरते पे है ना, आपां मैं कोई होर ही भर दिंदा, वो तो गलती है ना, उहदे ते तक उस कांटा भी वज जांदा हुंदा, सो उहदे नाल आपां नंबर भी लूज़ कर जाने आ। सो ਜਿਹੜੀਆਂ इदां ਦੀਆਂ एरर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, इग्नोरेंस वर्ड ज़्यादा सोहना आ, इग्नोरेंस करके ਜਿਹੜੀਆਂ एरर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ gross errors, ठीक है। So these errors can only be minimized when the observer is sincere and mentally alert, observer sincere होवे ते mentally alert होवे। ते सब तो वधिया गल है, मैनूं इन्ना पता है भी जिहड़े बच्चे 10th तो बाद साइंस लेंदे आ है ना, दे आर पैशनेट। बहुत ही घੱਟ इदां दे बच्चे हुंदे जिहड़े घरदिਆਂ दे प्रैशर दे नाल साइंस लेंदे आ। बच्चे साइंस वो लेंदे जिहड़े अपने करियर नूं लैके जां अपनी लाइफ नूं लैके पैशनेट हुंदे आ, नहीं यार असी लाइफ च कुछ करना, ठीक है, असी कुछ बनना आ, असी कुछ इदां दा करना भी दुनिया ते माइलस्टोन बन जाइए, एक बेंचमार्क बन जाए, हाँ बई आ सी गुरजोत सिंह, ठीक है, आपां ये सोचते हैं। सो जदों आपां ये सोचते हैं तो अगर ये लैवल तुसी अपने अंदर अटेन रख लो हमेशा, नहीं आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग एंड आई विल डू, मैनू कोई चीज़ दुनिया की रोक नहीं सकती, कोई हर्डल रोक नहीं सकती, जेड़ी भी चीज़ रोकन आऊगी, जेड़ी भी हर्डल आऊगी मैं उन्होंने देखूँगा या मैं उन्होंने देखूँगी, आई विल एनकाउंटर दैट, मैं उनके सामने खड़े होके उन्होंने टैकल करना सिचुएशन नूं। अपने ते लाइफ च बहुत सिचुएशनस आउंदियां आ टेढ़ियां मेढ़ियां, ठीक है, असी की करना हुंदा, असी सिचुएशनस नूं हैंडल करना हुंदा। हर बार आपां सिचुएशन ते जितदे नहीं आ, असी सिचुएशन तो हार भी जाने आ, बट उस सिचुएशन तो हारना आपां नूं की सिखाउंदा, वो आपां नूं एक्सपीरियंस दिंदा आ, ठीक है, वो नैगेटिव नहीं होंदा, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। अब्दुल कलाम साहब जिहड़े आ उन्हां दी बायोग्राफी अगर किते पढ़न नूं मिल जाए तुहानूं तां पढ़िओ, पता ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सी। सो ही सेज एंड दी उन्होंने डेफिनेशन दी सी, एफर्ट नेवर डाइज, एंड हो गया ना, कई कहते हैं एंड हो गया, एफर्ट नेवर डाइज, सो डू एफर्ट्स। आप एरर्स की गल कर रहे सी, मैं मोटिवेशनल वाले पासे नूं तुर पिया, मोटिवेशनल गल्लां करांगे, ठीक है। सो हौली हौली बच्चे इदां ही हुंदियां रहिंदियां, सो डू इट, जस्ट डू इट, ठीक है, डू इट विद फुल सिंसियरिटी। बेटा पढ़ना आ, होर आपां करना की है, खेडो ते पढ़ो, दो चीज़ां, खेडो भी ते पढ़ो भी। खेडना सेहत लई जरूरी है, खेडन दे नाल फिजिकल वर्कआउट रहूगा, जदों तुरदे आ ब्लड सर्कुलेशन चंगी रहिंदी है, हार्ट पंप करदा अपना चंगी तरह है ना, ब्लड जल्दी साफ हुंदा है, ऑक्सीजन जाती है, सो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूजी चीज़ है जिहड़ा पढ़ना आ, पढ़न दे नाल आपां नूं ज्ञान मिलदा, ठीक है, पढ़ाई जैसी भी करो आपां नूं ज्ञान मिलता। सो आपां पढ़ाई जिहड़ी आ वो एक वड्डे एम दे लई पढ़ रहे हैं, सो नॉट टू लूज द कंसनट्रेशन, ठीक है, जस्ट डू इट, पढ़ो चंगी तरह। डाउट्स कोई हुंदे आ उत्थे आपां बैठे हैं, चलो नैक्सट स्लाइड ते चलिए, गल्लां हो रही हैं। एवैल्यूएटिंग दी एरर्स, देखो असी एक्सपैरीमेंट कर रहे सी सारा कुछ, असी ना एरर्स सानू पता लग गया भी आ रही हैं, पता लग गया ना एरर्स का। हुण असी की करना, हुण असी देखना है भी असी एरर्स नूं कढना किदां। जदों एरर्स नूं असी मैथेमैटिकली नंबर्स दी फॉर्म दे विच टिका के लिख लिया, इट मीन कि आपां छा गए,
ठीक है। सो इहदे विच अपने कोल आ 3-4 तरह दी एरर्स ने, ये आपां सिखांगे किदां हुंदा। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। सो आपां इन्हां नूं कर रहे सी इवैल्यूएट। थोड़ा जिहा रौला हुंदा है, मेरा जिहड़ा छोटा काका वो रौला पाउंदा, इधर आ जांदा कदे कदे। चलो आपां देखीए इवैल्यूएटिंग दी एरर्स। सो आपां इहनूं नंबर दी फॉर्म च कढना है, मैथमैटिकल नंबर्स दी फॉर्म च। बहुत ईजी है, जस्ट इन्हां दी डेफिनेशनस देखनियां है, मैथमैटिकली किदां एरर कैलकुलेट करना आपां वो सीखना, ठीक है। सो ईजी है, इन्ना ही करांगे इस घंटे दे लैक्चर च। उस तो बाद उन्हां दी कंपीटीशन देखांगे, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फिर मैं क्या भी फोटो खिंच के ते मैं इहदे विच ही स्कैन करके ते नाल पा दित्तियां। कई बार ना अनएसटी हो जाता है इक्वेशनस लिखना, इहदे विच है तो सॉफ्टवेयर बहुत वधिया लिख सकते हैं, बट वही घोल हो जाती। चलो एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एरर? असी किदां एब्सोल्यूट एरर कढदे हैं? एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। जी ट्रू वैल्यू है, जी आप स्टार्टिंग डेफिनेशन देखी सी ना एरर की, उही डेफिनेशन दी है, ध्यान नाल देखो। उन्हें आप यही कहा ना भी जी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू तो जिन्नी मेजर्ड हुई है उनके जो डिफरेंस लै लो उन्होंने एरर कहने। पर एब्सोल्यूट का मतलब तो है ना एकदम उही एरर। एब्सोल्यूट मतलब प्रॉपर उही एरर। इट मीनस कि जो एक्चुअल च वैल्यू हैगी है तो जो असी मेजर की है, जो असी कैलकुलेट की है, उस की डिफरेंस है। सो वो करने लई की करांगे, असी सिंपली डिफरेंस ले लांगे, ठीक है। थोड़ा जिहा मैथमैटिकल देख लिए इहदे लई, कापी पैन ते नोट करना है, इहनूं इदां ही लिख लेना नोट्स दे विच, नोट्स से ऐ ही लिख लेना है, ठीक है। ये नोट्स की फॉर्म ही है। सो लेट ए फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड एन टाइम। लेट अस सपोज वी मेजर्ड ए फिजिकल क्वांटिटी एन टाइम्स। फिर लेट द मेजर्ड वैल्यूज बी, अपने को इत्थे बी की थां ते आर लिख लियो मैथ ग्रामेटिकली। लेट द मेजर्ड वैल्यूज आर A1। पहली बार A1 मेजर हुई, दूसरी बार A2 हुई, तीसरी बार A3 आई। सो इदां चलते चलते n टाइम्स कर लिया, तो जो n टाइम आया, ठीक है, मान लो 50 टर्म्स ने, 50 टाइम्स मिले, सो 50th टाइम मेरे को किया जो A50। सो n टाइम आई हैव रिटन AN। डन। सो द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज, अरिथमेटिक मीन की हुंदा? मीन सिंपल मीन, सारिया टर्म्स नूं जोड़ दो तो किन्नियां टर्म्स ने उन्हां नाल डिवाइड कर दो। मीन कढ़ना तो हुंदा ना, एवरेज कढ़दे हुंदे ना, मीन कढ़ना हुंदा। सारिया वैल्यूज नूं जोड़ दो, किन्नियां वैल्यूज नूं, अगर वी हैव 10 वैल्यूज प्लस दी 10 वैल्यूज, सम ऑफ 10 वैल्यूज बाय 10। डन। सो इदां ही अपने कोल AM लिख लेना। सो आ जिहड़ी चीज़ है इहनूं मैं सिंपली एक इहदे च लिख लिया, AM इज इक्वल टू n मैं 1/n बाहर लिख लिया। सो आ जिहड़ी चीज़ सी इहनूं मैं लिख लिया समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AI। जो अपने को ना प्लस च कोई वड्डी सारी चीज़ होवे उहनूं आपां इदां पा के लिख सकते हैं। इहदा मतलब ये हुंदा जे आपां इहनूं खोलिया तो I दी वैल्यू आपां की करनी है, 1 तो लैके n तक करी जानी है, भरी जाना। A1 जो आपां इहनूं खोलांगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इदां हुंदा। सो आपां इस चीज़ नूं जिहड़ा उपरला पोर्शन है, ठीक है, लेट मी टेक ए पेन। सो जिहड़ा आ वाला उपरला पोर्शन है, इस चीज़ नूं असीं लिख सकते हैं समेशन देना, ठीक है। सो 1 2 दी थां ते आपां I पा दिता, ठीक है। सो वी कैन टेक AM बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द वैल्यू, सॉरी वी कैन टेक AM बी द ट्रू वैल्यू इफ आपां इस AM नूं अपनी एग्जैक्ट वैल्यू मान सकते हैं। जिद्दां आपां पिछली एग्जाम्पल शायद गल भी की सी किते। सो आपां इहनूं मान लांगे भी हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू आ, ठीक है। तो जे अपने को वैल्यू नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, तो आपां इहनूं एग्जैक्ट वैल्यू मान लांगे। सो नैक्सट दे विच की है, सो द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी आर डेल्टा A1 प्लस AM माइनस AI। AM जिहड़ी प्रॉपर वैल्यू आ उहदे चों आपां फर्स्ट वैल्यू करती, दूजी बार जिहड़ी एब्सोल्यूट एरर आई वो की कीता, मीन वैल्यू चों आपां सैकेंड कढ़ती। इदां ही n टाइम आपां मीन वैल्यू चों जिहड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई उहदे चों आपां आ मेजर्ड वैल्यूज कढ़तियां। सो मैं तुहानूं यही कहा सी ना भी आपां मीन लैके की करांगे, सारियां जिन्नियां वैल्यूज आईयां वो उहदे चों माइनस कर दांगे, कोई इधरले पासे लाई कर जूगी पॉजिटिव वाले पासे, कोई नैगेटिव वाले पासे लाई कर जूगी। सो वो जिहड़ा अपने कोल है वो वैल्यूज आणगियां। दीज एब्सोल्यूट वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव,
बोथ भी हो सकदियां हो सकदा भी आ A1 दी वैल्यू AM नालों वड्डी होवे ये हो सकदा भी A2 दी वैल्यू AM नालों छोटी आई होवे ठीक है सो जे छोटी होगी A2 दी वैल्यू AM नाल छोटी है तो ये माइनस A हो जाऊगा वड्डी माइनस छोटी इट मीनस अपने कोल A प्लस दे विच क्वांटिटी आऊगी बट अगर A1 AM नालों वड्डा आ ठीक है बिगर है दैन की होगा वी विल गेट दी नेगेटिव वैल्यू सो वो दोनों पासे लाई कर सकती है ठीक है दिस वाज दी एब्सोल्यूट एरर चलो 40 मिनट्स हो गए आप नेक्स्ट लैक्चर की गल करते हैं अगली ठीक है ओके बेटा